Dear students, in 5th unit of engineering physics, our next topic is classification of the fibers or types of fibers. On the basis of refractive index of profile of the core, the fibers are classified as number 1 step index multimode fibers, step index single mode fibers or graded index multimode fibers. First we are taking step index multimode fibers. In these fibers have large diameter core and are used for short distances, that is less than 200 meter communication link, or for application where high power must be transmitted. तो इन फाइबर्स में जो कोर का डायमीटर है वो काफ़ी ज़्यादा होता है और ये 200 मीटर से कम डिस्टेंस के लिए ख़ास तौर से इस्तेमाल होते हैं या फिर कहीं हमको हाई पावर ट्रांसमिशन करना हो. दे हैव ए ट्रांसपेरेंट ग्लास कोर विद ए कांस्टेंट इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन. इनके अंदर जो कोर होती है उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक कांस्टेंट होता है. द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोफाइल ऑफ दीज फाइबर्स इज लाइक दिस. म्यू वन, ये कोर का म्यू वन है, ये म्यू टू है, ये काफ़ी बड़ा है डायमीटर, ये रेडियस है, ये जीरो लाइन है, एक्सिस लाइन है, यानी ये कोर एक्सिस है. द डायमीटर ऑफ द कोर इज अबाउट 20 to 100 माइक्रोमीटर and that of cladding is 100 to 200 micrometer. The standard overall diameter of the multimode fibers is 125 micrometer. The critical angle theta c is equal to mu 2 upon mu 1 is small. Since refractive index of cladding mu 2 is small, relative to refractive index of core mu 1. Hence, there will be a many path available for light signal to travel through the fiber. ये इसका पल्स प्रोपेगेशन है, ये कोर है, ये आपका ये कोर है, ये क्लैडिंग है बाहर, यहाँ से एक पल्स ये दिखाई गई है, इसमें मल्टी इंटरनल रिफ्लेक्शंस हो रहे हैं. फिर दूसरी वेव ये दिखाई गई है, तीसरी वेव ये दिखाई गई है, और जब ये एंड पर पहुंचते हैं तो इनका पहुंचने का टाइम सबका अलग अलग होता है. चूँकि ये म्यू कांस्टेंट है और ये डिस्टेंस अलग अलग है तो इनका टाइम भी अलग अलग होगा, इसलिए ये अलग अलग टाइम पे पहुंचते हैं ट्रैवलिंग विद द सेम वेलोसिटी. अलग अलग पहुंचते हैं, इसलिए इनका ये यहाँ पर डिस्टॉर्शन पाया जाता है जिसको हम डिस्पर्जन कहते हैं, और बेसिकली इसका नाम मोडल डिस्पर्जन है. सिंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कोर इज कांस्टेंट, ऑल द रेज ट्रैवलिंग विद द सेम वेलोसिटी टेक डिफरेंट टाइम्स टू रीच द आउटपुट एंड ऑफ द फाइबर. This spreading of arrival times causes a distortion or dispersion known as modal dispersion. It reduces the information carrying capacity of the fiber. ये एक तरह का डिसएडवांटेज है इन फाइबर्स का. In these fibers, light propagates in different modes, each with a different path transit time. The condition of these fibers is diameter D should be greater than 0.766 lambda upon Na, where D is the diameter of the core and numerical aperture Na is equal to under root mu 1 square minus mu 2 square. If number of modes is greater than 50, the number of modes is given by n is equal to 2 pi square a square Na square upon lambda square, where a is the radius of the core. The shape of input and output pulse is shown in this figure. ये टाइम है, एम्पलीट्यूड है, इनपुट पल्स ये इतनी हाइट है, लेकिन आउटपुट एंड में काफ़ी कम है, यानी कि ये डिस्टॉर्शन है इसमें, और सीधा सीधा है कि ये मॉडल डिस्पर्जन के वजह से इसकी इंटेंसिटी बहुत कम हो जाती है. नंबर 2, स्टेप इंडेक्स सिंगल मोड
or multi-mode fiber. To reduce dispersion almost zero level and to increase the information carrying capacity, the diameter of the core is reduced. ये देखिएगा diameter बहुत कम कर दिया गया है core का, is reduced to value about 10 times of the wavelength or difference of refractive index between core and cladding is made very small. Then only a single mode is propagated. मल्टी मोड फाइबर्स में जिस प्रकार से बहुत से मोड जाते थे तो उनका ट्रांजिट टाइम अलग अलग होता था। यहाँ पर एक ही मोड जाएगा तो वो मॉडल डिस्पर्जन का जो डिसएडवांटेज है पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। देन ओनली ए सिंगल मोड इज प्रोपेगेटेड थ्रू द फाइबर। सच ए फाइबर इज कॉल्ड स्टेप इंडेक्स सिंगल मोड और मोनोमोड फाइबर। द कोर डायमीटर इज 8 to 10 माइक्रोमीटर। इट इज डिजाइंड to eliminate modal dispersion by reducing the number of modes to 1, since only a single ray path travel to the axis of the fiber is possible in these fibers. The dispersion caused due to the difference in the arrival times of different rays in multi-mode fiber is completely absent. तो ये जो टाइम था डिफरेंस ख़त्म हो जाता है और मॉडल डिस्पर्जन इसमें ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। ये इस डायग्राम में मालूम पड़ रहा है। पल्स प्रोपेगेशन में ये इसकी क्लैडिंग है, कोर में एक ही मोड आपको दिखाई दे रहा है और यहाँ पर कोई मॉडल डिस्पर्जन नहीं है। एंड हेंस द इंफॉर्मेशन कैरिंग कैपेसिटी इज मच लार्जर देन मल्टी मोड फाइबर्स। तो इंफॉर्मेशन कैरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोफाइल ऑफ द कोर इज लाइक दिस। म्यू1 डायमीटर वेरी स्मॉल, ये काफ़ी बड़ी वैल्यू है। म्यू2 स्मॉल है और ये इस प्रकार से रेडियस है और ये एक्सिस ऑफ द कोर है। दीज फाइबर्स आर यूज्ड फॉर मोस्ट कम्युनिकेशन लॉन्गर देन 200 मीटर्स एंड आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड अंडर सी वाटर। इनका यूज अंडर सी वाटर बहुत होता है। The condition of these fibers is d less than 0.766 lambda upon Na, यानी इनका डायमीटर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए तो एक ही मोड जो है सपोर्ट करेगा फाइबर। द शेप ऑफ इनपुट एंड आउटपुट पल्स इज शोन इन दिस फिगर। सो टाइम ऑन एक्स एक्सिस, एम्पलीट्यूड ऑन वाई एक्सिस, ये इनपुट पल्स है जो ओरिजिनल है, और एम्पलीट्यूड टाइम इसी तरह से लेते हुए आउटपुट पल्स इसकी ऑलमोस्ट सेम है, यानी कि बहुत कम लॉस है इसमें। नंबर 3, ग्रेडेड इंडेक्स मल्टी मोड फाइबर्स। इन दीज फाइबर्स द स्टेप इंडेक्स, द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन in the core decreases continuously nearly in a parabolic manner from maximum value at the core axis to a minimum constant value at the core cladding boundary। इसको देखते हैं। ये कोर म्यू1 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्लैडिंग म्यू2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये है म्यू के लिए ग्राफ यानी प्रोफाइल। ये म्यू1 यहाँ से म्यू कम होती चली गई है, ये कोर के लिए म्यू1 है एक्सिस पर, फिर ये घटती हुई गई और फिर क्लैडिंग के लिए म्यू2 फिक्स हो गई। ये रेडियस इधर। देयरफॉर ये एज शोन इन फिगर, सिंस द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेजुअली डिक्रीजेस अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कोर, a ray entering the fiber is continuously bent towards the axis of the fiber away from the normal when denser to rare। ये रिफ्रैक्शन का लॉ है, जबकि वो डेंसर से रेयर में जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती है, इसी वजह से ये बेंट होती चली जाती है। ये इसका डायग्राम है, यहाँ से चलेगी और ये क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स धीरे धीरे कम होता जा रहा है तो ये नॉर्मल की तरफ झुकती चली जाएगी और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहां मिलेगा और ये वापस इधर आ जाएगी। इन पैराबोलिक
index medium, range path are smooth sinusoidal. The light rays traveling near the core axis move slowly than those passing near the core cladding boundary. तो चूंकि ये पाथ शॉर्ट है, वो लॉन्ग है, तो ये धीरे धीरे चलेंगी और ये जो दूर से जा रही हैं इनकी स्पीड ज़्यादा होगी. Hence, all waves reach the receiving end in same time interval. Thus, the transit time or modal dispersion is greatly minimized. अब यहाँ पर जो मॉडल डिस्पर्जन है वो बिल्कुल भी नहीं रहेगा, बहुत ज़्यादा मिनिमाइज हो जाएगा. The number of modes in these fibers is expressed provided the number of modes is greater than 50 as n is equal to p upon p plus 2 pi square a square n a square upon lambda square, where p is the index profile whose typical value is 2.0 for 850 nanometer. The shape of input and output pulse is shown in this figure. So this is the input pulse, and that is the output pulse. This is higher than that, and output pulse is very good. So this is all about the classification of optical fibers. Thank you so much.